Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. In the first one-day international of the three-match series, India beat England by 4 wickets at Nagpur today. England captain Josh Buttler winning the toss and opted to bat first. And batting first, England were bowled out for 248 in 47.4 over. And in reply, India achieved the target for the loss of just 6 wickets in 38.4 overs with 4 wickets in hand and 68 balls to spare, taking a 1-0 lead in the three-match series. England's start was brilliant. The opening partnership put on 75 runs inside 9 overs. Yes, at 8.5 overs, England were 75 when they lost the first wicket, and that is of Phil Salt, who failed in the T20 series. But here, he was going brilliantly, scoring 43 of 25 balls, was run out on the 26th ball, hitting 5 fours and 3 sixes with a strike rate of 165. He was run out for 43. 2 runs later, the other opener, Ben Duckett, also departed, and he made 32 of 29 balls, hitting 6 fours with a strike rate of 110. He was caught by Yashasvi Jaiswal of the bowling of Harshit Rana. And then another wicket. This first 3 wickets, 75 for 1, 77 for 2 and 77 for 3. Harry Brook was the third to go, facing 3 deliveries. Without scoring, he was out, caught by KL Rahul of the bowling of Harshit Rana. Inside 10 overs, England was 77 for 3. Yes, inside 9 overs, at 8.4 over, they were 75 without loss. But adding 2 runs, they lost 3 wickets in inside 10 overs. They lost the 4th wicket, and that is the most experienced batsman, Joe Root, was out after scoring 19 of 31 balls with the help of 1 4. He was legged before by Ravindra Jadeja. England were 111 for 4. Nelson on the board, and they lost the 4th wicket in 18.3 overs. 59 runs were added for the 5th wicket, and they lost the 5th wicket of the captain Josh Buttler in the 33rd over. Josh Buttler, after reaching his half century, was out after scoring 52 of 67 balls with the help of 4 fours. His strike rate was 78, and he was caught by Hardik Pandya of the bowling of Akshar Patel. 13 runs later, Liam Livingstone-Devar, after scoring 5 from 10 balls, he was caught by KL Rahul of the bowling of Harshit Rana. 23 runs were added for the 7th wicket, and 7 to go was Brydon Cast at 206 in the 40th over, and he made 10 of 18 balls, hitting 1 4, and he was clean bowled by Mohammad Shami. 8 to go was Jacob Battle, who also scored a half century, and he was out after scoring 51 of 64 balls, hitting 3 fours and 1 6 with a strike rate of 80. He was legged before by Ravindra Jadeja, and England were 220 for 8 in the 43rd over. Then they lost their 9th wicket at 241. Adil Rashid departed after scoring 8 of 16 balls. He was also bowled by Ravindra Jadeja. And the 10th and final wicket of Saqib Mahmood. England were 248 in the 48th over, and Saqib Mahmood was the last man to go after scoring 2 from 4 balls. He was stumped by KL Rahul of the bowling of left-arm unorthodox Kuldeep Yadav, while Jofra Archer remained unbeaten on 21 of 18 balls, hitting 3 fours and 1 6. भारत की बॉलिंग देखी जाए तो मोहम्मद शामी 8 ओवर में 1 मिडन 38 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 4.75 इनकी इकॉनमी और इनके 8 ओवर में 6 चौके लगे। हर्षित राणा 7 ओवर में 1 मिडन 53 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। 7.57 इनकी इकॉनमी, इनकी बॉलिंग पे 6 चौके और 3 छक्के लगे। इन्होंने 1 वाइड बॉल भी की। अक्षर पटेल 7 ओवर में 38 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 5.42 इनकी इकॉनमी, 3 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। हार्दिक पांड्या 7 ओवर में 1 मिडन 37 रन दिए और कोई विकेट हासिल की। 5.28 इनकी इकॉनमी, 2 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। कुलदीप यादव 9.4 ओवर में 53 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 5.48 इनकी इकॉनमी, 5 चौके इनके ओवर में लगे। और रविंद्र जडेजा दी मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, 9 ओवर में 1 मिडन 26 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। 2.88 इनकी इकॉनमी, और इन्होंने भारत की जानिब से तीनों फॉर्मेट में मिला के 600 विकेटें भी मुकम्मल कर ली। इंग्लैंड बैट्समैन हिट 23 fours and 5 sixes, and they scored their runs at a run rate of 5.20. India, in reply, chasing a target of 249, achieved the target for the loss of 6 wickets
in 38.4 overs. जी हाँ, 249 रन के ताकुब में भारत ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया 38.4 ओवर्स में। भारत का आगाज 19 के स्कोर पे भारत की पहली विकेट गिरती है 5वें ओवर की तीसरी बॉल पे। ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं 22 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 15 रन बनाने के बाद। इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर फिल सॉल्ट ने, बॉलर थे जोफ्रा आर्चर, और फिर 19 के स्कोर पे दूसरी विकेट भी गिर जाती है। कैप्टन रोहित शर्मा आउट होते हैं 7 गेंदें खेलने के बावजूद सिर्फ 2 रन बनाए। इनका कैच पकड़ा लियाम लिविंगस्टन ने, बॉलर थे साकिब महमूद, और फिर उसके बाद से तीसरी विकेट 113 के स्कोर पे गिरती है। 94 रन की तीसरी विकेट की पार्टनरशिप है 64 गेंदों पे श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के दरमियान। इस पार्टनरशिप में श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों पे 59 और शुभमन गिल ने 28 गेंदों पे 28 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल 113 पे लेके जाते हैं। 16वें ओवर की आखिरी बॉल पे 113 के स्कोर पे तीसरी विकेट श्रेयस अय्यर आउट होते हैं अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद। 36 गेंदों पे 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 164 के स्ट्राइक रेट के साथ 59 रन बना के आउट होते हैं। लेग बिफोर कर दिया इनको जेकब बैथल ने। और यहाँ पे फिर एक और पार्टनरशिप 108 रन की, 107 गेंदों पे 108 रन अक्षर पटेल और शुभमन गिल के दरमियान, जिसमें अक्षर पटेल ने 47 गेंदों पे 52 और शुभमन गिल ने 60 गेंदों पे 53 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल मजीद आगे लेके जाते हैं। 221 पे पहुंचता है 34 ओवर में। यहाँ पे इनकी चौथी विकेट गिरती है और आउट होने वाले बैट्समैन अक्षर पटेल, जिन्होंने एक और निफ सेंचुरी मुकम्मल की 47 गेंदों पे 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 111 के स्ट्राइक रेट के साथ 52 रन बनाने के बाद आउट होते हैं। इनको आदिल रशीद ने क्लीन बोल्ड कर दिया और फिर 5 विकेट 225, 4 रन का इजाफा होता है। केएल राहुल 2 ही रन बनाने के बाद आउट होते हैं 9 गेंदों पर, कॉटन बोल्ड बाय आदिल रशीद, जबकि छठी विकेट 235 के स्कोर पे। शुभमन गिल हाईएस्ट स्कोर अपनी सेंचुरी से 13 रन की दूरी पे आउट होते हैं। 87 रन बनाए 96 गेंदों पे, जिसमें 14 चौके शामिल थे और इनका 91 स्ट्राइक रेट। इनका कैच पकड़ा विकेट कीपर जस बटलर ने और बॉलर थे साकिब महमूद। तो ये आखिरी भारत की विकेट गिरी 235 पे। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मतलूबा हदफ मुकम्मल किया। हार्दिक पांड्या 9 और रविंद्र जडेजा 12 के स्कोर पे नॉट आउट रहे और भारत ने मतलूबा हदफ 38.4 ओवर में 6.49 के औसत से 6 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। भारत की जानिब से अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो भारत के बैट्समैनों ने 34 चौके और 4 छक्के लगाए। तो ये बहुत वाज़ेह डिफरेंस है। चौकों के अगर बात कर ली जाए तो 34 चौके बहुत ज़्यादा है भारत की जानिब से। इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए, जोफ्रा आर्चर 7 ओवर में 1 मिडन 39 रन देकर 1 विकेट हासिल की। साकिब महमूद 6.4 ओवर में 47 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। ब्राइडन कास 5 ओवर में 52 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। आदिल रशीद 10 ओवर में 1 मिडन 49 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। जेकब बैथल 3 ओवर में 18 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। लियाम लिविंगस्टन 5 ओवर में 28 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि जो रूट ने 2 ओवर करवाए और 2 ओवर में इन्होंने 10 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। शुभमन गिल, जिन्होंने 96 गेंदों पे 87 रन बनाए और इनकी इनिंग में 14 चौके शामिल थे, इनको इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.